Okay. Good afternoon, everyone. I myself, Dr. Deepali Mehta. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF. Today, we on our Guruji ke Saath Guruvar, we are having a very big guest. That is our Honorable Dr. Liaquat Namole sir. सर के बारे में क्या कहना? अभी हर इधर जो कोई प्रेजेंट है वो सबको मालूम है कि सर के बारे में सब कुछ मालूम है. फिर भी as a formality, I am telling you many the known things about sir. Sir is practicing in Nashik. He is practicing more than 31 years, and he has conducted 300 seminars and 250 webinars all over. Also, he has conducted national level seminars on specific diseases like diabetes, cancer, infertility, skin, and pediatrics. सर का मोटो है 10,000 से ज्यादा जीपी लोग अपने होम्योपैथी की तरफ आने चाहिए, क्योंकि वी पीपल आर टेकन आवर एजुकेशन इन होम्योपैथी, बट मेनी ऑफ अस आर becoming adulterous and practicing allopathy. I myself also from that group, but sir has converted me also in the homeopathy, and it is a big thing in my life. My friend Dr. Mansi Patil, who supported me in this, and sir also helped and taught many things in homeopathy. Sir is also pioneer of a group Ignited Minds by PHF. There are 2,500, more than 2,500 doctors uh, daily learning in our group. Sir also discovered a unique method of MML, that is mind method by Dr. Liaquat. The focus of this group also is practicing solely on mind method, and sir's mantra is empathy. Dr. Liaquat Namole sir is a master of gestures. He is one who has introduced gestures in homeopathy. Sir is also author of bestseller book Humanopathy. More than 10,000 copies of this book are sold, and sir is working out now on the second edition. Now we are very eagerly waiting to hear from sir. So I welcome sir and Thank you, request him to start. Okay. Thank you. Thank you. Welcome, sir. Very, very grateful for you. Okay. Thank you, guys. Thank you for being there with me in this mission. I pray to God that we really accomplish this mission as much खाना as कहाँ possible. निकालेंगे? एक इसको पानी पिलाना है, इसको बंद करो रे पहले. एक रिक्वेस्ट है सब, प्लीज आप लोग ना अपना सीरियसली अपना मोबाइल म्यूट कर रखो, है ना. मेरी लिंक टूट जाती है बिकॉज मेरा माय वेज आई एम नॉट लाइक द वन हु ऐसा पढ़ के बताना मेरे को नहीं आता है. तो प्लीज थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है ना. डांटने मत लगाओ मुझको. टुडे वी हैव आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट very, very important topic that we deal in our day-to-day life. We see the cases and many patients. Of course, my practice though is like in infertility is like huge, like thousands of cases I've seen since I started treating this disease. It's a very, very easy problem to deal for a homeopath. Only 1% of the cases they really get stuck. Otherwise, 99% success rate is there in infertility. Even if the patients are not regularly coming to you, even then you can really, really heal these cases. Okay, so let us start without wasting much time. I would today have done the PPT. All right, so let us start. The topic is a simple topic, right? Today, okay. So today I'm going to speak about infertility. That is one of my favorite topics in which I've got really very good results. In fact, all my students are getting very, very fantastic result because we are dealing with a social platform. I cannot show you the video cases in this.
I think we have a course also, infertility course that I had taken, and many of my students got benefited by it. Even myself, I got benefited by it when I was teaching it. My own concept got clear again and again. So still, I'll try and you know cover as much as possible here. Video cases I cannot show you. वो अगर है तो फिर आप डॉक्टर प्रणीता से बात कर लेना. She will help you about the courses and all that. Okay, now infertility. Infertility is not, please remember, infertility is not a single person's problem. It is always husband and wife, both. ये गलती कभी मत करना कि सिर्फ फीमेल को ट्रीट करना या मेल को ट्रीट करना. ये गलती गलती से भी मत करो. भले आप स्पाउस की ट्रीटमेंट आप फ्री में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या फिर आप उसका फीस इसी में इंक्लूड कर लो. ये आप प्लीज 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 ध्यान में रखें. इनफर्टिलिटी जो है ये दोनों की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मर्द की या औरत की प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ओके, तो सी nowadays male infertility is rising. The reason why it is rising because आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा एफेमिनेट मेल्स बढ़ रहे हैं. अगर आप देख रहे होंगे जो बहुत नाजुक, देयर आर रीजंस बिहाइंड इट, क्योंकि पापा की परियां होती है, वैसे माँ का लाडला भी होता है ना. बेटियों को ज्यादातर बाप ज्यादा लाड करते हैं, लेकिन माँ का लाडला भी बहुत है माँ के लाडले. ठीक है ना. आप देखते हैं सेलिब्रिटीज से लेकर तो इवन द पॉलिटिशियंस एंड सोशल वर्कर्स एंड सो मेनी ऑफ देम यू विल सी टू बी वेरी मच एफिमिनेट, है ना. तो उसके कारण मेल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है. एक दूसरी बात, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मैन इज अनदर प्रॉब्लम बिकॉज द फीमेल्स आर, इट्स अ वेरी गुड साइन, females are becoming powerful. Even though people like, even though आजकल हमने अभी वो डाउरी के अंदर की केसेस देखी हैं जो कि ऑलमोस्ट डेली होती रहती है, पर वो अभी बहुत बड़ी केस अपने फ्लैश में देखी. फिर भी पावरफुल फीमेल्स अभी बढ़ रही है, जो कि सच में, बिकॉज आई एम अ फेमिनिस्ट, फॉर पीपल लाइक मी इट इज अ वेरी वेरी वेलकम साइन. तो उसके कारण मेल इनफर्टिलिटी का रेशियो अभी बढ़ रहा है. ठीक है. मेल इनफर्टिलिटी पे अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. मैं ये 2-3 लेक्चर्स की सीरीज लूंगा. उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कोर्स कर लेना पक्का. ठीक है. ओके. So please remember, infertility is not a physical issue. It involves physical and psychological both. It has both the reasons. For me, because I am practicing on mind, it is more the mind issue. Because what Dr. Harriman has taught us, it is the first mind which is affected, then is the body. Okay. Now let us study simple जाएंगे, फिर इसको मैं elaborate करूंगा. इसको हम कैसे homeopathically correlate करेंगे. First is PCOD. PCOS, polycystic ovarian disease or polycystic ovarian syndrome अभी उसको बोलते हैं, which is the right word. Second is tubal blockade. Then uterine abnormalities are there, है ना, जैसे bicornuate uterus, small uterus, है ना, ये चीजें हैं. Endometriosis is a very very again common problem. Okay, though not very common in infertility, but it's a common problem nowadays. ठीक है. थिन एंडोमेट्रियम भी होता है और थिक एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियोसिस, थिन एंडोमेट्रियम इतना थिक होता है एंडोमेट्रियोसिस में कि वो बाहर भी आने लग जाता है ना, वजाइना में भी आ जाता है. ओके. दूसरा, ओवम प्रोडक्शन इश्यूज आ देयर. ANH कौन सी टेस्ट करते हैं आप लोग ज्यादातर? इट इज AMH levels are low. Then systemic diseases like hypothyroidism mostly तो hypothyroidism हमको देखने को मिलता है. Hyperthyroidism is very lesser number. Uterine tuberculosis अगर आपने देखा होगा, very famous, Aishwarya Rai also had this problem. That is what we have heard in the television and also in the doctor's meeting. So that's a common problem too nowadays. Tuberculosis is not eradicated. Vaccine से नहीं हुआ है eradicate. Again, being a homeopath, we do not support vaccination. Okay, now let us talk about PCOS, polycystic ovarian syndrome.
what happens? The ovum is ruptured. I mean, ovum is produced, becomes bigger and bigger and bigger, doesn't get ruptured, doesn't rupture, and then what happens? It becomes a cyst, and that starts collecting in the ovaries. Now, what is the reason for this? What is the reason for the cyst not being ruptured? Matlab, the lady is able to produce. The lady production में problem नहीं है. हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट बायोप्सी रिपोर्ट उसमें या क्या होगा? सब किया मैंने. उसमें क्या होगा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में? हेलो, who was it? ओके, थोड़ा प्लीज अपने म्यूट पर रखो यार, आप लोग डिस्टर्ब होता है. आप लोगों का अगर हिंदी नहीं समझ में आती होगी तो इंग्लिश में बोलता हूँ. प्लीज पुट ऑफ, प्लीज कीप योर फोन्स ऑन म्यूट. इफ यू वांट टू टॉक, टॉक डायरेक्टली. ओके, एनीवेज. अब कौन है ये? ठीक है, क्या करते हैं यार आप लोग, लिंक टूट जाती है. एनीवेज, मतलब द ओवम इज प्रोड्यूस्ड, राइट? ओवम प्रोडक्शन हो रहा है मगर रप्चर नहीं हो रहा है. क्या मतलब होगा इसका? मतलब द लेडी is capable of producing ovum, but it is not getting ruptured. So where is the problem? Where is the problem? I want you all to discuss. You can unmute and discuss. Tell me. Anybody wants to speak anything? किसी को कुछ बोलना है कि ओवम बन रहा है, रप्चर नहीं हो रहा है? हेलो, एनीबडी? आप सुन पा रहे हो मुझको? Am I audible? ज्यादातर पीसीओडीज में फीमेल्स अपनी जो फेमिनिटी है उसको वो मतलब नहीं चाह रही हैं बेसिकली. उनको ज्यादा डोमिनेशन मिल रहा है या दे डोंट वांट टू बी फीमेल आई कैन से. मतलब जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं उनके, दे हैव टू वर्क ऑन दैट लेवल. तो देन आल्सो देयर इज पीसीओडी इज वेरी कॉमन एंड पीसीओएस. ओवम बन रहा है मतलब टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम नहीं है. ओके ओके, आप समझ रहे हो? ओवम बन रहा है, रप्चर नहीं हो रहा है, इसलिए उसका सिस्ट फॉर्मेशन होकर ओवरी के अंदर कलेक्ट हो जाता है. दैट इज हाउ द पीसीओडी इज, राइट? दैट इज हाउ पीसीओएस इज. सो क्यों नहीं रप्चर हो रहा है? मतलब ओवम बन रहा है, मतलब द लेडी इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. ठीक है, ओवम बना रही है, रप्चर नहीं हो रही. बोलो. ओके, इज इट ओनली सॉइल that is responsible for a bad crop, or it's also the seed that is important for the bad crop? Or is it only the seed that is responsible for bad production, or it is the soil also that is responsible? बोथ. Seed. Both are important. Now, here ovum is, what is ovum? Female is the soil, male is the seed, right? But the thing in infertility, सबसे अच्छी चीज ये है भगवान की कि सिर्फ और सिर्फ sperm is not the seed. Female produces half the seed and gives the soil also. उसका endometrium जो है वो soil रहता है. So ovum has both the capacities. It plays the role of soil also, it plays the role of seed also. It completes the seed of the man. She takes the X or Y from the man, gives her X. It combines together, unites together.
there's a unification and then production and then right इंजेक्ट इट क्या कहते हैं उसको, वो इंजेक्ट होता है एंडोमेट्रियम में और फिर बढ़ता है, लेकिन दोनों का संयोग होता है, संयोग, सहयोग, कोऑपरेशन. इट्स अ कोऑपरेटिव मूवमेंट, प्लीज रिमेंबर. इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट मूवमेंट, इट्स अ कोऑपरेटिव मूवमेंट. सो फ्रॉम कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव टू कॉर्पोरेट. हेलो. Infertility is cooperative to corporate, right? So the cooperation is between two partners. So there has to be partnership. Previously, it used to be not partnership. It used to be gulamgiri. It used to be slavery. That the owner, the lord, the man, the male would just give the X or Y, and the lady will become the soil, will become the slave, will do anything. इसके लिए उस वक्त बच्चे भी ज्यादा होते थे, पैदावार ज्यादा होती थी, अब कम हो रही. तो अब पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं. समझ रहे हो आप लोग? हेलो. धीरे धीरे फीमेल राइट्स की उनकी अपनी अवेयरनेस फीमेल्स की बढ़ रही है, और उसके साथ साथ वो अब फीमेल राइट्स मांग रही है. हेलो. तो उनका शरीर अब फीमेल राइट्स मांग रहा है कि मैं प्रोड्यूस तो करूंगी बेटा, मैं रप्चर नहीं करूंगी, देखती हो तेरे में कितना दम है, चला जा, देखने दे मुझको, तेरा स्पर्म कितना अट्रैक्टिव है, तू कितना मुझे खुश कर सकता है. हेलो. समझ रहे हो? सिर्फ भैया इंटरकोर्स से नहीं चलेगा, सिर्फ लव मेकिंग से नहीं चलेगा. You have to be really, really that attractive to me, then only I'll accept you and I'll rupture. I will give you entry. Rupture होता है तब एंट्री मिलती है ना ओवम के अंदर. हेलो. स्पर्म को एंट्री, भाई तेरे को मेरे फीमेल पार्ट्स में तो एंट्री मिल गई, ओवम में एंट्री मैं नहीं दूंगी. मतलब एक बैरियर एक होता है कि नहीं, जस्ट रिजेक्टिंग द मैन, आई डोंट वांट टू मैरी यू, आई डोंट वांट यू नो हैव इंटरकोर्स विद यू, फिनिश्ड. एक ठीक है बेटा, शादी तो तूने कर ली, इंटरकोर्स तो कर लिया, अब मैं तेरे स्पर्म को ओवम में एंटर नहीं करने दूंगी. हेलो. यहां तक के क्लियर हुआ? यस सर. सिंपल चल रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये क्या है, ये क्या है? हेलो. इसके लिए दो कारण हो सकते हैं, राइट? एक, दैट शी इज कंफ्यूज्ड कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं. बराबर ना? कंफ्यूजन में इंसान क्या होता है ना, करूं कि नहीं करूं में नहीं करूं ज्यादा जीतता है. बराबर है? हेलो. एंट्री दूं कि नहीं, नहीं क्या दूं कि नहीं, दूं कि नहीं. जब शक पड़ने लग जाता तो शक में इंसान क्या कर देता, फाइट और फ्लाइट. तो ये नहीं करूंगी, नहीं खोलूंगी दरवाजा, भाई बाहर से बोलो, है ना, वीडियो कॉल पे बात करते हैं. हेलो. या फिर आप वो की होल से बात करो, बाहर वो होता है ना, बेल बजाओ, खड़ा होता है, कैमरे में दिखता है अंदर कौन है. भाई नहीं, आई एम नॉट रेडी येट, आई एम नॉट रेडी येट. हेलो. राइट? So the lady is not ready yet. Hello, are you with me? Is it going Yes, sir. downstairs? Yes, sir. Yeah. So she is not ready, right? So either she is confused, irresolute, not ready, clearly. Got it now? Confusion. तो क्या क्या रुब्रिक आएंगे? समझ में आ रहा है अभी? Are you with me in this? Yes, yes. यस सर. So what will be the possible rubric here now?
What will be the possible rubric, guys? Irresolution. Irresolution. Irresolution बोलो अभी क्या? ठीक है, irresolution आ गया. दूसरा, what is the other possible rubric? Can you see the repertory? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, irresolution. दूसरा क्या? Confusion. बराबर ना? Mind. Confusion of mind. समझ रहे हो? हेलो. अब confusion of mind कब है ये? Heat during, chill during. If she is low, it will be chill during. If she is high on the chill during. Mostly क्या आएगा बताओ अभी? Heat या chill? Chill during. क्यों chill? बोलो. कैसे आएगा chill? बताओ. Chill कैसे आएगा? बोलो. Chill क्यों? Chill मतलब when things are low. Yeah. Good afternoon. So probably it's heat during because the lady is either too angry or she is in resentment or she is not willing. It could be that way. Or chill means she's just reciprocating but she is not interested So that will be in cold, that na? way. That will be cold, not chill, na? beta? Yes, sir. So probably it's mostly it's heat during because she is herself in a like angry, not receiving. How angry? How angry? Like the person is not soothing her much, not comforting her the way she expects from the relationship. Very good. And simply why heat during is because when mating, both are hot. It's Hello. the situation is warm, na? Exactly. It's a warm, so it is heat during. Warmth अगर लोगे तो reciprocate कर देगी ना बेटा. Okay. अरे ये कौन स्क्रिबल कर रहा है? आप समझ रहे हो? If it is a warm, what do you expect from a relationship? Warmth, na? Yes, sir. So if it is warm, she will reciprocate, she will melt. Hello. Okay. आप Understood. कब रोते Yeah. हो? आपको किसी ने अगर गले लगा लिया तो आप रोने लग जाते हो ना? तो हाँ. वो वार्मथ है ना? तो जब आप गले Yes, लगाते sir. हो तो वहां पे वार्मथ मिलती है, तो आप वहां पर पिघल Yes. जाते हो, राइट? Okay. All right. Yeah. अंडरस्टूड? तो Yes, वार्मथ में तो आप मान Yeah, जाओगे. दैट इज व्हाट यू वांट. सो देयर कैन बी multiple reasons: lack of warmth, lack of security, right? Lack of Yes, warmth. Lack of warmth is the first reason. बराबर ना? Lack of warmth, lack of security. Simply, पैसा नहीं है. Husband is not working well, not very good financially. Hello, are you getting me? So these are the reasons. So they can be there can be things, like individual poor. सर उतना पैसा नहीं है, आगे जाके बच्चे को क्या खिलाएंगे, आज हमारा ही नहीं है. बोलते ना लोग ऐसा कि सर हमारा ही नहीं है अभी. I had a case, the lady aborted in the first incidence. Abortion happened in the second trimester. It was just fourth month or something. Okay, then she aborted. Second pregnancy, she aborted in the third month. Third time, immediately in 15 days, like 6th week or 7th week. So abortions were becoming frequent and earlier. मतलब the lady was getting clearer and clear कि नहीं रखना है. मतलब वहां तक इसने रोकी नहीं, पीसीओडी में रोकी नहीं उसने. समझ रहे हो? पीसीओडी में रोक देती वहीं पे कि नहीं बाबा, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड. बट there are cases where there is no PCOD. We don't know. They come to us with tendency to abortions. अपन ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते कि ठीक है आपने लिए
This much is enough. And then I asked the lady, what is the problem? She said, sir, I'm not sure about this man. I'm not sure about this man. He's not earning well. घर का भी सच्ची नहीं है. क्या करूं? So what is the possible remedy? Tell me. Hello. So what she's not getting, Sir, she's not getting anxiety. financial security, हाँ, right? anxiety future and anxiety money matters. Anxiety matters of money. Money matters. And delusion poor नहीं आएगा. हाँ सर आएगा. Anxiety, money matters about. दूसरा, Bamboo. anxiety, children about. कि हमारा ही गंद खाने के वांदे है, तो बच्चों को कैसे हम पालेंगे, राइट? अब बोलो, या तो कुछ नहीं आ रहा है अभी. Bamboo सा है. Bamboo सा होगी सर. बाम्बूजा में एंग्जाइटी चिल्ड्रन है क्या? सर एंजाइटी चिल्ड्रन कैसे आएगा? अभी बच्चे तो को हुए कैसे ही मोटा नहीं करेंगे? ना. बच्चों हाँ को हाँ कैसा? लेकिन बिफोर दैट दिस इज द स्टेट इज बिफोर द कंसेप्शन. सो बट कैन देन वी यू आर टेक एंग्जियस अबाउट द, एंजाइटी? तो शी इज थिंकिंग अबाउट बच्चा ना, कि सर मेरा ही वांदे, तो बच्चे को कैसा करेंगे? बाम्बू सा में इम्पेशंस है सर. चिल्ड्रन अबाउट एंजाइटी नहीं. नहीं वो छोड़ो, वो नहीं. ये सिचुएशन के लिए आपके रूब्रिक्स बताओ क्या क्या आएंगे. शी इज नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर. बराबर है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इज द मैटर. तो एंजाइटी मनी मैटर. दूसरा क्या आएगा बोलो? शी इज नॉट फीलिंग सिक्योर. एंजाइटी सिंपल फ्यूचर. नहीं एंजाइटी पता. फ्यूचर. ओके, बहुत बड़ा रूब्रिक है बेटा वो. इसके हाथों मेरा भविष्य सिक्योर हाँ नहीं. बहुत बड़ा ये रूब्रिक. यू विल लैंड हाँ नोवेयर. अरे इनसिक्योरिटी मेंटल, क्योंकि माइंड से सोच रही है अभी, इमोशन से सोच रही है क्या? बोला ब्रायन या बैम्बूजा, क्या दोगे आप? चलो. bambuza because support, generally bambuza requires support. Bryonia to will bargain between lesser जो एविल. कम वो है वो अभी जस्ट थिंक लेगा. अबाउट दिस बीना. नाउ शी इज बिकमिंग क्लियरर एंड क्लियरर अबाउट, कि पहले इतने महीने में कर रही थी, अब इसमें कर रही है, अब इसमें. अब मतलब सिक्स इसमें, उसका 6th वीक में अबॉर्शन होता है ना? तो अभी उसको क्लैरिटी बढ़ रही धीरे धीरे धीरे. बराबर है. फ्रॉम हाँ कंफ्यूजन सर. की हाँ क्लैरिटी जा रही ना ये. एक कदम बढ़ा हाँ लिया और वापस ले रही, कदम बढ़ा के वापस ले रही है ना ये. हेलो. हाँ हाँ. कदम बढ़ाकर वापस ले रही है. बोलो क्या लोगे? सर वो डिसीजन नहीं ले पा रही है. वेरी गुड. धीरे धीरे बन रहा है ना इरेजोल्यूशन. बोलो. ये लोगे इरेजोल्यूशन टू मैरी? टेल मी नाउ. not able to take decision. Okay. और आगे? Yes. Tell me now. क्या आ रहा है देखो रूबरी. क्या है रेमेडी देखो. ब्रायोनिया ही आया सर. दिस इज ब्रायनिया. देयर इज बट ड्राइनेस दिख नहीं रहा है ना सर. मैडम ये सब चीजों पे हम नहीं जाते हैं. अच्छा ठीक है. मतलब ड्राइनेस हो तो ही ब्रायनिया, बिल्कुल नहीं. ये एक रूब्रिक है. चलो फॉर योर इंफॉर्मेशन. हम्बलनेस. ठीक है. ह्यूमिलिटी में देखो कौन है. यस यस देयर इज या ब्रायोनिया इज देयर. नाउ टेल मी.
Now tell me, how will you understand this humility of Bryonia? If he's a dry person, कैसे humility रहेंगे? हाँ? How is it possible then? So ये ऐसे rule मत बनाओ. Okay, don't make rules. Okay, Okay, please. sir. Okay. Yeah. Yeah. So this is a very clear cut Bryonia. देखो ना, average कंजूसी देखो ना, है ना? मतलब उसको प्रोडक्शन भी करना है, समझ रहे हो? प्रोडक्शन भी करना है, लेकिन मतलब जो फ्री में हो रहा है होने दो, जहां पे उसका खुद का खर्चा होने वाला है वो नहीं होने दे रही, समझ रहे हो? दिस इज ब्रायनिया, एवराइज, प्लीज रिमेंबर दिस. अंडरस्टूड? दिस इज ब्रायनिया. वेरी rarely we use bryonia in infertility, right? In fact, in females, I don't know how many of you have used bryonia. So this is the situation. Now, second, she doesn't want, she's not, I mean, let us coming back to our original thing where we were discussing why the lady is not rupturing the ovum. We said confusion, another is clarity. कि नहीं करना है मेरे को रप्चर, यहां तक तेरे को दे दिया भाई, मेरे को रप्चर नहीं करना है, बराबर है? तो द फर्स्ट रुब्रिक इन सच केसेस, इफ शी इज क्लियर, विल बी क्लैरिटी ऑफ, राइट? शी इज क्लियर. कंफ्यूजन ऑफ माइंड, यहां तक कि मान गई थी यील्डिंग. हेलो, कि भाई मेरा यील्ड तो है, यील्डिंग हूं लेकिन क्लियर हूं. हेलो, पहले इसमें कंफ्यूजन था, यहां पर क्लैरिटी है, मान गए. हेलो, मान गई है कि चल भाई तेरा मैं तेरे को बताती हूँ, देख मेरे को है, मतलब आई एम एबल टू कंसीव बट आई विल नॉट कंसीव फॉर यू. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Thank you. It's raining nicely. Okay, so she is yielding, matlab she can produce, she has all the capabilities to produce, but she is clear कि मेरे को rupture नहीं करना है. So these are the two remedies, these are the two rubrics that will come very much, and only 11 remedies. Clarity of mind, yielding disposition. समझ रहे हो? प्रोड्यूस कर रही है लेकिन आगे नहीं होने देना, ठीक है? ये सटल स्टेट ऑफ माइंड बताएगा. डिनाइल चल रहा. नक्स, पूजा, कॉफिया, ट्रिटिकम, ऑलिव सैक. अगेन बीना विल से कि हाउ ऑलिव सैक सर, ऑलिव सैक इज वेरी नाइव. ऐसा नहीं है, प्लीज रिमेंबर. ऑलिव सैक, इग्नेशिया, एसिड फॉस्फोरस, पॉसिबल स्पॉन्जिया, टैक्सस बक्काटा, ओजोन. Mind you, I have had cases of all these remedies in fertility, all these remedies, all 11 of them. यहां तक के समझ में आया? Any confusion regarding this? Hello? Any confusion till here? No. Hello? No, sir. Any No any confusion. question? No confusion. मतलब clarity है यहाँ पर कि नहीं होने देना है. Yes. Yielding है, मतलब Hmm. प्रोडक्शन की कैपेसिटी है लेकिन होने नहीं देना है. यहां तक आप लोग समझ गए होंगे तो आगे चलते हैं. ठीक है, यहां तक कोई सवाल है? हेलो, नहीं यहाँ तक सर. कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. दूसरा क्या था, एक कंफ्यूजन का हमने देखा कि कंफ्यूज है, होने दूं कि नहीं होने दूं, है ना? बराबर है. एक है कि चाहती है मगर उसका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा, बराबर है ना? कि सर मैं चाहती हूं पर शरीर साथ नहीं दे रहा है. बोलते हैं ना लोग कि समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, इट हैपेंस ना दैट यू वांट इट, but the body doesn't respond, right?
बिकॉज सटल माइंड के अंदर नहीं होता है. Subtly you are tired, you know, or maybe by overthinking or by overworking your mind, it becomes tired, fed up. Like the ovum is, like the ovaries are tired, fed up by producing ovum and ovum and ovum and ovum. Or the uterus doesn't want to take the load. Okay, तो कंसीव नहीं होगा, मेंसेस आ जाएंगे, रप्चर भी हो जाएगा, या फिर ओवम जम के रह जाएगा. ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप थके हो, मन चाहता है शरीर, लेकिन चाहता है मन, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है ना. यूजुअली इम्पोर्टेंसी में ऐसा होता है कि द माइंड वांट्स, द बॉडी डजंट सपोर्ट. यूजुअली दैट हैपेंस इन impotency and which other disease this happens in? Anybody? ये और कौन सी अवस्था में ऐसा होता है कि आपका मन चाहता है? हाँ बेटा, Diabetes. पैरालिसिस. बराबर है. तो क्या आएगा फिर? तब क्या आएगा? इन दैट केस what will be the scenario? Hello. In that case, what are the possible rubrics that will come? What will be the reaction when the body doesn't respond? Must. Hmm? Helplessness. Irritability. Sorry? Hello? Helplessness, sir. sir. हाँ. एक Sir, जना can, पूछो. cannot हाँ, move in अनुपम, catalepsy, cannot move in catalepsy, sir. That rubric. catalepsy is like total ना बेटा. Ah, yes. यहाँ पे टोटल नहीं है ना. वो तो उसमें रुब्रिक इज रिकॉग्नाइजेस रियलिटी बट कैनॉट मूव. तो वहां तो Yes, yes. रियलिटी, Not that one, sir. Not that. रियलिटी. हाँ यार, यहाँ पे सिंपल पहला रिएक्शन क्या आएगा? सर क्यों नहीं हो रहा है? ओम आ रहा है सर, सब सही है सर, एएमएच लेवल किया, सब किया, सब किया, सब किया, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है सर? बोलते हैं ना लोग, सारे टेस्ट नॉर्मल है सर, फिर क्यों नहीं हो रहा है? बोलते हैं ना गुस्से से लोग. Yes, sir. सारे टेस्ट नॉर्मल है सर, पीसीओडी क्यों नहीं जा रहा है सर? मैंने मेटफॉर्मिन भी लिया, फिर भी नहीं हो रहा है सर. पीसीओडी भी चला गया, फिर भी नहीं हो रहा है. मतलब बेसिकली था पीसीओएस. तो यहाँ पर आएगा एंगर फ्रॉम पैरालिसिस. क्या आएगा? रेमेडीज ज्यादा है यहाँ पे, देखो ओनली 3 रेमेडीज. नैट्रोमूव, नक्सोमिका, स्टेफिसेग्रिया. हेलो, एंगर फ्रॉम पैरालिसिस. अब स्टेफिसेग्रिया में और स्पेसिफिक रूब्रिक आ जाता है, एंगर फ्रॉम पैरालिसिस ऑन वन साइड. ठीक है, अब बताओ और क्या आएगा? व्हाट अदर रूब्रिक विल कम? सैडनेस, राइट? हेलो, sadness from impotency. Hello. If the lady becomes sad, then so paralysis and impotency are here, we can take as synonymous. Okay. If you become sad, then sadness from paralysis. ऐसा नहीं कर पा रही है, लेकिन हो नहीं रहा है, मैं चाहती हूँ, नहीं हो रहा है. सैडनेस फ्रॉम पैरालिसिस, राइट? दूसरा रूब्रिक क्या आएगा? डिस्पेयर, सैडनेस फ्रॉम इम्पोटेंसी, डिस्पेयर फ्रॉम इम्पोटेंसी. सर क्या करूं, अब कुछ नहीं होगा ऐसा लगता है. सारी टेस्ट नॉर्मल है सर, परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है, शरीर भी नहीं दे रहा है सर. हेलो, सैडनेस फ्रॉम इरिटेबिलिटी. और एक रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी फ्रॉम इम्पोटेंसी है क्या? देखो, इरिटेबिलिटी विथ इम्पोटेंसी, चिट चिट करने लग जाए, तो ये 3. हेलो, समझ में आ रहा है अभी? एंगर, सैडनेस, इरिटेबिलिटी एंड डिस्पेयर. हेलो, आर यू विथ मी नाउ? हेलो, Yes, आर sir. यू गेटिंग मी? एम आई ऑडिबल? समझ में Yes, आया? sir. मतलब Yes, आप sir. चाहते Yes, हो sir.
मतलब सटल कहीं कभी आप में पहला रिपल्शन था, लेकिन अभी रिपल्शन चला गया है, मगर अभी शरीर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ट्रेन भी हो जाता है ना। जैसे आपको चिड़चिड़ की आदत, इट्स लाइक नशा ना, आप चाहते चाहे छूट जाए, नहीं छूटती है। तो शरीर को एक बार आदत भी लग जाती है ना एक चीज की, तो उसके बाद में ये आएगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड से, इरिसोल्यूशन से, फिर ये है कि चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है। इसीलिए नक्शमिका इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडीज फॉर infertility in females. I tell you, almost 50% of my cases resolve with Naxomika. Almost 50% of my cases. Okay. Now somebody will ask me, sir, PCOD in young unmarried कैसे होता है? तो they have issues with their father or brother, the male or boss, right? So it is the male counterpart which is the reason for the PCOS. Okay. Even the male in the female, please remember, that is also the reason for PCOS. The best example of that is hirsutism. मतलब the need to be a man during her nurturing, कि बाप अच्छा नहीं है, या गरीबी है, या अन्याय बहुत हुआ है, या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टाटा से आती है लेकिन लड़की होशियार है, या उसके साथ अन्याय हुआ है, या डाउन ट्रोडन कम्युनिटी से आती है, या सो कॉल्ड जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो वैसे कम्युनिटी से आती है, तो फिर वो उसमें स्ट्रांग रहेगा। पहले दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, अभी मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आदिवासी के साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन जितना बढ़ रहा है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन के कारण फिर लड़कियां बोलती है कि मुझे मर्द बनना है अब, तब फिर वो बच्चा नहीं होने देना चाहती, तो हिर्सुटिज्म आएगा। इसलिए फिर मूछें बड़ी आएगी, भवें चिकटी हुई आएंगी, है ना। एक्ने ज्यादा आएंगे, एक्ने थ्रोट बहुत ज्यादा दिखेंगे, एक्सेस हेयर ग्रोथ दिखेगा बॉडी पर, मेल लाइक फीचर्स दिखेंगे, बड़े बड़े ओठ रहेंगे, फीचर्स विल बी नॉट द टिपिकल राउंड फेस और द सुहाना फेस ऑफ द फीमेल, दैट वोंट बी सीन। सो दैट कम्स फ्रॉम द, तो वहां पर फिर तुमको उसको केटर करना है कि बचपन कैसे गया, हाउ वाज द फादर, है ना। द फादर कॉन्फ्लिक्ट, मदर कॉन्फ्लिक्ट अगर रहता है तो फिर अगेन इनजस्टिस कैन सपोर्ट, मोस्टली फिर वो इग्नेशिया नक्सोमी का हाई समझ में जाएगा अगर सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट रहा तो। अगर पिताजी जल्दी गुजर गए हैं, या पिताजी है मगर गरीब है, जैसे बराइटा फादर है, या वेरी डोमिनेटिंग, है ना, ऐसे डोमिनेटिंग फादर जिसने माँ पर अन्याय किया है, तो देन द रेमेडीज कुड बी इग्नेशिया, हेलो, आर यू गेटिंग मी, और कार्सिनोसिन, बिकॉज मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है जल्दी, और इवन फॉलिक्यूलिनम, क्योंकि अब्यूज हुआ है बहुत ज्यादा। सो दीज रेमेडीज विल कम। ओके, यहां तक कि किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो, एनी डाउट स्टिल हियर? हेलो, सर एम अभी आई स्टार्ट ऑडिबल? देख, या अभी जो स्टार्ट बंद तो देखना था। पूजा, आई एम मतलब सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू बेटा, इट्स रेनिंग हियर, ओके सर। आई एम नॉट एबल टू हियर यू वेल। ओके, अब तक अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है आज के लेक्चर में? चलो, बाकी का इन द नेक्स्ट फर्स्ट थर्सडे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके मानसी? हाँ सर। So यस, thank you so much. Never thought of bryonia in this perspective, especially in infertility cases. This was a eye-opening session. Waiting eagerly for next session. Thank you so much, sir. वेलकम बेटा।
I'm happy that Yes, sir. Yes, sir. you are Yeah, able to yeah. understand. It was like Bravania, though. बहुत है बेटा, there are No, more no Big words to explain. Thank you. Thank you, Bina. More to see, more surprises, more surprises. क्या होता है ना, जब कोर्स का मैं इसके लिए बोलते रहता, आप बोलेंगे सर पैसे के लिए बोल रहे हैं, इट्स नॉट फॉर मनी। जब हम लोग जूम पे लाइव वीडियो केसेस में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को बहुत जबान रोक के बात करनी पड़ती है। I cannot explain things really in a doctor language, you know, because this people are going to see, anybody can see that, you know? So मुझे थोड़ा सा यहाँ पे restrictions आते हैं, ठीक है? Yeah, yes, Mansi. Thank you so much, sir, for the informative and very, very practical session. And for sure, we are going deeper into the infertility session. And डेफिनेटली जैसे आज ब्रायोनिया के बारे में सबका भ्रम निराश हो गया, या फिर बोल सकते हैं इमेज फिक्सिंग, जो हर बार आप बोलते हैं कि इमेज फिक्सिंग नहीं करनी है, सो दैट आल्सो गॉट क्लियर टुडे. So thank you so much. Thank you, my PHF team, and thank you everyone for joining. Keep joining and keep learning. Thank you. Thank you.